Hello friends, welcome back to our channel Enlightened Lives. So today in this video I will discuss about idealism, philosophy of education, and in the end I will also tell you about the questions that are really important for exam purpose and how can you frame your answers for this particular philosophy. So let's begin. Now you must be thinking, what is idealism? Idealism is basically a philosophy of education and a school of thought. आइडियलिज्म को हम आदर्शवाद भी कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री यूजिंग टू वर्ड्स, दैट इज़ आइडिया एंड इज्म. सो आइडियाज़ के ऊपर काम करता है, आइडियल्स के ऊपर आदर्श. So these three words are really important to understand if you are studying idealism, that is spiritual. It is all about spiritualism, ideals, as it is very much clear from the word itself, and self-realization. So if you are reading idealism, then you must keep these three words in your mind: spiritualism, ideals, and self-realization. Now these are some idealist philosophers. Plato initiated this philosophy. इसको प्लेटो ने ये philosophy start की थी. And these are some idealist philosophers: Socrates, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi. Although Mahatma Gandhi was not a completely idealist, he was naturalist and pragmatist too. Swami Vivekanand, Froebel, Radhakrishna, Aurobindo Ghosh, and Shankaracharya. आप इनके नाम याद कर सकते हैं, इनको कहीं नोट कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी एग्ज़ाम में किसी एक पर्टिकुलर फिलोसोफर और उसकी आइडियलिस्ट फिलोसफी के बारे में लिखने के लिए भी आ जाता है. Now let's move to what is idealism. According to idealism, a man is born with a spiritual self. He understands its true nature only through education. तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एक इंसान अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ बॉर्न होता है और वो अपना ट्रू नेचर, अपने बारे में, अपने आप को एजुकेशन के थ्रू समझता है. Idealists believe that it is only through the agency of education the ideals of race and its cultural patterns are preserved, transmitted and modified subsequently in light of new situation. तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हमारे जो कल्चर होते हैं, जो हमारा रेस है, हमारा नेचर, उसको हम प्रिजर्व रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, या फिर दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, हायर वैल्यूज आर मच इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ देन ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ. तो आइडियलिज्म में, एज इट इज़ क्लियर, आइडियल्स, हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला गया है ह्यूमन वैल्यूज़ को, हायर वैल्यूज़ को. अकॉर्डिंग टू हॉर्न, so this is a definition given by Horn, an idealistic philosophy of education is a version of a man finding himself as an essential part of the universe of mind. तो आइडियलिस्ट फिलोसफी के अंदर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान, अ मैन, कैन फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को एक असेंशियल, बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स का समझ के अपने आप को समझ सकता है. हाईएस्ट नॉलेज, तो इस फिलोसफी के अंडर स्पिरिचुअल रियलिटी, ब्रह्मा ज्ञान को हाईएस्ट नॉलेज बोला गया है. द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, आइडियलिस्ट बिलीव इन द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो फुल प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की इन्होंने बात की है, और इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स द अचीवमेंट ऑफ परफेक्शन. तो इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डेवलप होने का मतलब है परफेक्शन, मतलब ये बिल्कुल परफेक्शन, आदर्शवाद, आदर्श की बात करते हैं, हायर वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, आइडियल्स की बात करते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉलिंग full development of personality is achievement of perfection. Next we have idealism and the aim of education. So what is the aim of education under this philosophy? First is exaltation of human personality. Then we have universal truth, development of initiative and creative power, acquisition and enrichment of cultural environment, development of moral sense, and self-realization. So these are really important aims of education that comes under idealist philosophy of education. We'll understand
these in detail. Exaltation of human personality. So the exaltation of human personality is the major of aim of education as contained in idealism. The exaltation of personality is based on the concept of realization of the highest potentialities of the self in a social and cultural environment. तो exaltation of personality का मतलब है कि हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियलिटीज़, हाईएस्ट कैपेबिलिटीज़, हमारी एबिलिटीज़ को समझना, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है उसको समझना हमारे सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में। तो एजुकेशन के थ्रू हम अपने आप के हमारे पोटेंशियल्स को समझ सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, तो सेल्फ रियलाइजेशन शुड नॉट बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ चोजन फ्यू since it is universal. All individuals should realize self and self education should aim at this. तो सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है? सेल्फ रियलाइजेशन शुड नॉट बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ चोजन फ्यू। सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं होना चाहिए, जबकि हमारी एजुकेशन यूनिवर्सल है, सबके लिए है। तो हर इंडिविजुअल को अपने आप को समझना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। वी शुड रियलाइज आवर सेल्फ। तो और सेल्फ एजुकेशन इस पे एम, हमारा जो एम है इस पे होना चाहिए कि सबको समान तरीके से वो अपने आप को समझ सके। डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव पावर। सो अंडर दिस मैन शुड मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन पर्पस, नीड्स, थ्रू हिज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव स्किल्स। तो एजुकेशन हमें ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि एक इंसान अपने एनवायरनमेंट को अपने पर्पस, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, हम अपनी इनिशिएटिव या क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू। एजुकेशन मस्ट फॉस्टर इन्वेंटिव पावर ऑफ अ मैन टू एंश्योर हिज मास्टरी ओवर द मटीरियल गिवन टू हिम। तो एजुकेशन के थ्रू एक इन्वेंटिव पावर आनी चाहिए इंसान के अंदर, जिससे कि उसको जो भी दिया गया है उसके अंदर वो एक मास्टरी गेन कर सके, परफेक्ट हो सके। Development of moral sense. So according to idealism, man is essentially a model being there for model intellectual and aesthetic aspects of his personality should be promoted. तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मैन सिर्फ एक मॉडल है और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स आने चाहिए, यानी कि माइंड में उसके हायर मोरल वैल्यूज़, एस्थेटिक सेंस, अप्रिशिएट करने की सेंस, ये सब प्रमोट होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप मोरल सेंस सो दैट ही मे बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। एजुकेशन के थ्रू उसके अंदर एक ऐसी मोरल सेंस डेवलप होनी चाहिए जिससे कि वो सही और गलत में पहचान कर सके। एजुकेशन शुड डेवलप द विल पावर ऑफ द चाइल्ड सो दैट ही मे फॉलो द गुड एंड रिजेक्ट द इविल। These virtues can be developed by correct appreciation of truth. तो एजुकेशन से एक बच्चे के अंदर ऐसी विल पावर आनी चाहिए कि वो सिर्फ अच्छाई को अपनाए, अच्छाई के पीछे जाए, अच्छाई को फॉलो करे और बुराई को रिजेक्ट कर दे, बुराई के पीछे ना जाए, बुरा इंसान ना बने, यानी कि वो सिर्फ हायर वैल्यूज़ एक्सेप्ट करे, आइडियल्स एक्सेप्ट करे और एविल के तरफ ना जाए। और ये तब हो सकता है जब हम सच्चाई को अप्रिशिएट करेंगे, ट्रूथ को अप्रिशिएट करेंगे। नाउ एक्विजिशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। सो द एम ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज प्रिजर्वेशन, एनरिचमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसको प्रिजर्व करना एक आइडियलिस्टिक एजुकेशन का एम होता है। उसको एनरिच करना, उसको बेहतर बनाना और उसको ट्रांसमिट करना, यानी कि दूसरों तक पहुंचाना, नेक्स्ट जनरेशन को देना, हमारे आसपास। एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड इट शुड हेल्प इट इन एनलार्जिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ स्पिरिचुअल रेल्म। यानी कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट करना चाहिए कल्चर के डेवलपमेंट, हमारी सभ्यता को बढ़ाने में, और इसको एनलार्ज, हमारा जो स्पिरिचुअल रेल्म है, स्पिरिचुअल बाउंड्री है, उसको एनलार्ज करने में, उसको बड़ा करने में, ताकि और लोग भी हमें फॉलो कर सकें, हमारा कल्चर अडेप्ट कर सकें और समझ सकें। सेल्फ रियलाइजेशन, सो दिस इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल इंडिविजुअल्स टू रियलाइज सेल्फ so as to establish harmony between his nature
एंड द अल्टीमेट नेचर ऑफ द यूनिवर्स। तो एजुकेशन का पर्पस या फंक्शन ये होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल अपने आप को अच्छे से समझ सके और अपने आप को समझ के वो एक हार्मनी क्रिएट कर सके अपने नेचर में और यूनिवर्स के नेचर में। So that is self-realization. Now idealism and curriculum. So what is our curriculum according to idealist philosophy? So while developing curriculum, idealists gave more importance to thoughts, feelings, ideals and values than to the child and his activities. तो idealist thoughts, feelings, ideals और values को ज़्यादा importance देते हैं child और उसकी activities के अलावा. So for idealism, these things are really important rather than child and his activities. They firmly hold that curriculum should be concerned with the whole humanity and its experience. It must consist of humanity. तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलम पूरी होल ह्यूमैनिटी को के लिए होनी चाहिए, पूरी होल ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए, अपने कल्चरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. एंड सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, एथिक्स, फिलोसफी, history, literature should be provided. So these subjects were given according to idealist. Healthy mind is found in healthy baby only. So health, hygiene, games and sports should find an important place. तो उन्होंने games और sports को एक importance place दी थी अपने curriculum में. Then we have idealism and methods of teaching. Idealism has not prescribed specific methods of teaching. According to idealism, classroom is a temple of spiritual learning, a meeting place of human minds, a place for self-education. For this, no particular method has been suggested. However, the following methods have been advocated by different idealists. तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एक क्लासरूम टेम्पल होता है स्पिरिचुअल लर्निंग का, एक मीटिंग प्लेस जहाँ पे ह्यूमन माइंड्स मिलते हैं अलग अलग तरीके के, एक जगह जहाँ पे हम खुद को एजुकेट करते हैं. तो इसके लिए उन्होंने एक कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बताया है, लेकिन ये कुछ मेथड्स हैं विच आई हैव गिवन टू यू, दैट इज़ गिवन बाय फ्यू आइडियलिस्ट्स. तो अलग अलग आइडियलिस्ट ने कुछ मेथड्स दिए हैं. लेट्स डिस्कस. लर्निंग थ्रू रीडिंग, तो रीड करके लर्निंग, लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग, लर्निंग थ्रू डिस्कशन और लर्निंग थ्रू इमिटेशन. इमिटेशन इज कॉपी करके. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो डिफरेंट आइडियलिस्ट ने दिए हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. ट्रेडिशनली या पहले के टाइम पे ये मेथड को यूज़ करके बनाया जाता था और दीज आर टीचर सेंटर्ड मेथड. Basically talked about employing traditional methods of teaching. Idealism assign a special role to the teacher. It considers teacher as a spiritual guide for the child. तो टीचर को ये सबसे स्पेशल रोल देता है और टीचर को मानते हैं कि टीचर एक स्पिरिचुअल गाइड होता है टीचर का. अकॉर्डिंग टू फ्रॉयबल, द स्कूल इज़ अ गार्डन, द टीचर इज़ अ कॉशियस गार्डनर एंड द चाइल्ड इज़ अ टेंडर प्लांट. तो इस फिलोसफी के अंडर टीचर को ही एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है. चाइल्ड को और चाइल्ड एक्टिविटीज़ को चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती है ये आइडियलिज्म की फ़िलोसफी, ये टीचर सेंटर्ड है कम्प्लीटली. तो जैसा कि फ्रॉयबल ने कहा है कि स्कूल एक गार्डन है और टीचर को गार्डनर बोला है, गार्डनर, और द चाइल्ड इज़ अ टेंडर प्लांट, और चाइल्ड एक प्लांट है, एक छोटा सा वीक प्लांट जिसको उसको प्लांट करना है और उसको वाटर करना है, सिखाना है, गाइड करना है. नाउ आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन. Idealists do not advocate a free discipline as it may leave child astray. This school of thought advocates strict discipline for self-realization. तो इसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को एडवोकेट करता है आइडियलिज्म. टीचर गाइडेंस इज नेसेसरी एट एवरी स्टेप as he would impress upon the child the importance of higher values. तो टीचर की गाइडेंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि बच्चा उन्हीं को देखकर सीखेगा, उन्हीं के हायर वैल्यूज़ को गेन करेगा. टीचर ही ट्रांसमिट करेगा उनको उनके कल्चरल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़. अ डिजर्व्ड रिवॉर्ड फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ नोन टू लिव अंडर सेल्फ इम्पोज्ड रेगुलेशन इज एडवोकेटेड. तो जो उस बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड की बात करी गई है जो अपने ऊपर कुछ ऐसे रेगुलेशन खुद सेल्फ इम्पोज्ड यानी कि अपने ऊपर खुद इम्पोज करके रहता है, रेगुलेशंस लगा के, यानी कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है, आइडियल्स के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलता है. सो रिवॉर्ड शुड बी गिवन टू
those child. Evaluation and criticism of idealism. सो आइडियलिज्म फिलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा थिंकर्स ने क्रिटिसाइज भी किया है, और इस फिलॉसफी के अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे कि ये ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करता है, एडवोकेट करता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को करता है। अब के सिनेरियो में ये चेंज हो गया है, मॉडर्न मेथड टीचर सेंटर्ड नहीं होता, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हाँ, अब बच्चे को फ्री छोड़ा जाता है। सो let's understand some of the criticism of idealism. The common criticism regarding idealism is that it is an abstract and vague doctrine. It avoids the present realities and prepare the child for the next world. यानी कि स्पिरिचुअलिज्म की बात की है तो ये आज की या प्रेजेंट टाइम की रियलिटी को इग्नोर करके, अवॉइड करके बच्चे को नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करता है। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म, या नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करता है। आइडियलिज्म is concerned with the ultimate end of life. It avoids the real problems day to day living. तो आइडियलिज्म एंड ऑफ लाइफ की बात करता है और डे टू डे लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट करता है, अर्निंग की, लिविंग की कोई बात नहीं करता। Idealistic education give more importance to teacher in relation to the child. Modern psychology emphasizes the prime and central importance of child. तो आइडियलिस्ट में, एज आई हैव टोल्ड यू, कि टीचर सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता। Idealistic methods of teaching emphasizes cramming and rote memory. In modern education, these methods are given little importance. तो आइडियलिस्टिक मेथड पूरा ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें सिर्फ रट्टा लगाने को, क्रैम करने को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी गई है। बट इन मॉडर्न एजुकेशन अब ये मेथड्स को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। देन वी हैव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलते जुलते थोड़े से लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं। Comment on the idealist philosophy of education. Explain the idealist aim of education along with one idealist philosopher. तो किसी भी आइडियलिस्ट फिलोसोफर को चूज करके जिसको आपने पढ़ा है उसके बारे में आ सकता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जा सकता है। कॉमेंट अपॉन द रोल ऑफ टीचर्स इन आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो टीचर्स के रोल के ऊपर पूछ सकते हैं, या एम्स ऑफ एजुकेशन पूछा जा सकता है, या आइडियल करिकुलम पूछा जाता है आइडियलिस्ट का, तो कुछ भी आ सकता है। शॉर्ट नोट में आएगा तो एम्स या रोल ऑफ टीचर या करिकुलम या डिसिप्लिन आ सकता है। वैसे अगर आपका लॉन्ग आंसर आएगा तो ये पूरी आपको फिलॉसफी लिखनी होती है। नाउ हाउ कैन यू फ्रेम योर आंसर्स? अगर आपको आइडियलिज्म के बारे में पूरा लिखना है, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन आइडियलिज्म, देन यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग about idealism in general, then explain the aims of education in this philosophy, then write about idealism and curriculum, then write idealism and teacher, then you can write idealism and discipline, idealism evaluation and criticism, and then you can conclude your answers by giving a few points or by giving your viewpoints on that philosophy of education and by comparing it with the current scenario. और अगर आप ये इसी पॉइंट को यूज़ करके या इन्हीं पॉइंट को यूज़ करके सब पॉइंट्स बनाकर आंसर लिखेंगे, so that would help you fetching good marks in exams. I hope you have understood this philosophy. If you like this video, if it was helpful for you, please do like, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of our new videos. Thank you so much and best of luck.